کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اور زبور نویس کہتا ہے کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم خداوند کے نام کا شکر کریں، کیونکہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ربی ہے، اللہوں کے خدا کا شکر کرو، اس کی شکر کرو کیونکہ وہ ہماری نجات اور ہمارا اونچا برج اور ہمارے چھپنے کی جگہ اور محکم قلعہ ہے۔ سو ضروری ہے کہ جب ہم خداوند کے نام سے اکٹھے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا، گیت اور پھر شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر گزاری کے بعد جب خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے، عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں کیا ہونا ہے؟ مضبوط ہونا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ قرآن یسوع مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام جو ہے کل، آج بلکہ اب تک ہے۔ تین باتیں ہیں، کل، آج بلکہ اب تک، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک یہ سب خدا کا کلام ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر خدا نے جو ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے وہ برکت کا وعدہ ہے۔ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، بلیسنگ سے بڑھ کے بلیسنگ۔ وہ بلیسنگ جو ہے ہمیں زندگی کے اندر آتی ہے، خاندانوں کے اندر آتی ہے، جب ہم یونائٹ ہو جاتے ہیں اور خداوند کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ پہلا تو سمیتیوں کے نام، پالوس رسول کا خط ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت اور پیاری باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم ان کو ضرور سیکھیں۔ اور دوسرا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارے بارے میں بھائیو خداوند کے پیارو، ہر وقت خداوند کا شکر کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے۔ اگر آج ہم وہ لازمی کام نہیں کرتے جو ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ ہم نے کیا کرایا ہے وہ بے مقصد چلا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم شکر گزاری کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ ٹارگٹ رکھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، تو خدا سنتا ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ شکر گزاری کرنا چاہیے خدا کے لیے، اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، اس نے ہمیں یہ صحت بخشی ہے۔ تھوڑا سا وقت دیجئے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ باتیں بعد میں نہیں ہوں گی، شاید اس کے بعد جب نیا گھر لیں تو تب ہوں، لیکن خدا جو وقت ہمیں دیتا ہے اس وقت کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو دن ہی دن کو کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ جب کوئی شخص زبور نویس کہتا ہے داؤد کہ قبر میں تیری کون شکر گزاری کرے گا؟ قبر کے اندر کوئی شکر گزاری نہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، زندگی آپ کو خدا نے دی ہے، اس کے لیے آپ نے خداوند کا شکر کرتے رہنا ہے۔ اور یہاں پالوس نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس کے لیے چن لیا ہے، پوائنٹ کیا ہے۔ اور جب ہمیں پوائنٹ کیا گیا ہے تو پھر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بہت بڑا کام ہو، جس طرح کہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا اور بہت بڑا وہاں کام ہوا، اور وہاں دو بہت اہم کام ہوئے۔ خدا نے ایک تو بنی اسرائیلی قوم کو نکال دیا، اور دوسرا کیا کہ جب یردن پار چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان کے ساتھ تھا، اور بزرگ موسیٰ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی بڑی بہن جو مریم تھی نبیہ کہلائی گئی، اور انہوں نے خداوند کے لیے کیا کیا؟ کسی کو پتا ہے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، انہوں نے دف لیا اور خدا کی شکر گزاری کی۔ کس لیے شکر گزاری؟ اس نے کہا کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا میرے لیے، آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ سب بولے آمین۔ یہ خدا کرتا ہے یہ کام۔ اور مریم نے خداوند کی شکر گزاری کی، اور وہ زبور جو تھا وہ 136 زبور کہلایا گیا، جو وہ زبور بنی اسرائیل سے ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سارا سفر گزرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کا گیت ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری ایسی رکاوٹیں، بہت سارے ایرر آتے ہیں۔ بنی اسرائیلی قوم کے اندر پرابلم یہ تھا کہ جب وہ بزرگ موسیٰ کے ساتھ چلتے تھے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ بڑبڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا؟ مرنے کے لیے لے آیا، بہتر تھے ہم ادھر ہی بیٹھتے، ہم ادھر ہی رہتے۔ لیکن ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے لہو سے خرید لیا، یسوع کے لہو میں ہم چھپ گئے، اور اس کی یونٹی میں آگے، اس کی محبت میں آگے، اس کے کلام میں آگے بڑھے۔ اور یہ ہمارے لیے خدا نے کتنا بڑا انتظام کیا کہ ہم آج خدا ان کے ذاتانہ طور پر شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور پالوس نے کہا کہ اس نے ہمیں ابتدا ہی سے چن لیا ہے تاکہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پائیں۔
हमारा हक क्या है, मसीह ने हमें इख्तियार दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। आज अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट रखते हैं, कोई भी आप मकसद रखते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो चीज नहीं है उसके लिए आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ये इलाही भेद है, इसे इंग्लिश में कहते हैं की वर्ड्स, ठीक है। इलाही खुदा का एक मकसद है कि जो चीज आपके लिए अभी सामने नजर नहीं आई, मुहैया नहीं की गई या ली नहीं गई, आप उसके लिए पहले से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। तो खुदा पहले से ही हमारे दिल, ख्याल, सोचों को जानता है। उसको मालूम है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा गया कि वो यहोवा अब्बा अदनाई है, अलहीम है, और वो हमारा रब है जो हमें सादक को क्या कहता है, नींद में दे देता है। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारी बहन को बरकत दी, और जितनी जिंदगी कोमल ने गुजारी उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अपने भाई के लिए, बच्चों के लिए, आप सब के लिए मैं खुदावंद के सामने शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज ये आपको मौका दिया कि आज हम इकट्ठे हो सके, हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें क्या करना है, हक पर ईमान लाकर सच्चाई का कलाम सुनकर। यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो, सच्चाई तुमको क्या करेगी, आजाद करेगी। बहुत सारी दुनिया के अंदर आज भी लोग हैं जो आजाद नहीं होना चाहते, बहुत सारी बातें जो है वो खुदा के कलाम को नहीं जानना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। खुदा ने इब्तिदा में जब कलाम किया, खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदाइश की किताब में क्या लिखा हुआ है कि खुदा की रूह क्या करती थी, पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो खुदा पहले भी वही था, यीशु मसीह भी वही है। मसीह यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं, अपना रूह भेजता हूं। वही रूह है जो मुजस्समे कलाम हुआ। सो खुदा जो है बदला नहीं है, वो यीशु मसीह के वसीले से जाहिर हुआ। यूहन्ना के इंजील में लिखा है पहला बाब उसकी आखिरी आयत में कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसने जाहिर किया है। सो खुदा कल भी वही काम करता था, बड़े बड़े, आज भी वही हमारे साथ कलाम करता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि जी हम नई कलीसियां हैं या एक नया हमसे एक वादा किया गया। नो, खुदा के कलाम लिखा है खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वादा किया और कहा मैं आगे नस्लों को बरकत पर बरकत दूंगा। वो ब्लेसिंग आज भी हमारे साथ चल रही है। और जब तक पौलुस रसूल और उसके शागिर्द और जितने भी मसीह यीशु के इब्तिदाई शागिर्द थे, उस वक्त तक हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस, इंजील मुकद्दस तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं थी। और जितने भी खुदावंद के ये सूरमा है वो सारा ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते थे और उसको पढ़ के आगे प्रीच करते थे। ये तो बहुत सालों के बाद ये लिखा गया। सो खुदा का कलाम बदला नहीं है, हम नए अहद के लोग नहीं हैं, हम उसी अहद के हैं जिसने खुदा ने हमें पहले से चुन लिया, शुरू से चुन लिया, उसने हमें अपना कौम बना लिया और आखिर वक्त में अपने बेटे के जरिए हमारे लिए मुखलसी का दरवाजा खोल दिया। क्योंकि मुखलसी सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से भी, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर आप देखिए चैप्टर 3 में, वहां खुदा ने हमारे लिए पहले से इंतजाम किया हुआ था। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम उसी अहद के साथ जो खुदा ने बांधा था आखिर तक हम चल रहे हैं। अब निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है, बैलों और बकरों के खून के जरिए से नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का पाक और पवित्र खून जो है हमें निजात दे सकता है। और यहाँ पौलुस रसूल ने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उसने कहा कि पाकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर क्या करो, निजात पाओ। आज में अगर निजात का मीनिंग जो है छुटकारा, अगर खुदा ने हमें आज निजात दी है तो उसके लिए हमें खुदा का क्या करना है, शुक्र करना चाहे। और जब शुक्र करते हैं तो उसके लिए लाजम है कि हम हर वक्त हर लम्हा क्या करें, रूह में शुक्रगुजारी करें। जब हम रूह से शुक्रगुजारी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के पाक प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं। और जब खुदा की प्रेजेंस को आप अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करेंगे तो फिर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हर वक्त हर लम्हा कहीं भी हों, चाहे वो गाड़ी में हो, घर में हो, किचन में हो, कहीं भी हो, खुदा उनका शुक्र करें। पहला तीमुथियुस और उसका दूसरा बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, कहता है बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। नसीहत किसको की जाती है? उसको की जाती है कि जो सुनने वाला हो। अगर कोई आदमी नसीहत करे तो सुने ना, तो उसके लिए नसीहत तो नहीं होती ना। नसीहत उस शख्स के लिए होता है जो एक्सेप्ट कर ले। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ तालीम देते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। लेकिन खुदा के लोग जो हैं, जब कोई नसीहत की जाती है तो उसको सीखना समझना जरूरी है। पौलुस ने इस बात की तरफ खास तवज्जो दी क्योंकि उस वक्त बहुत सारे एरर जो थे उस दौर के अंदर मौजूद थे।
और पौलुस की खिदमत में देखें कि हम उस दौर के अंदर देखें कि बहुत सारे रबी जिनकी अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम वो आगे लेकर आते थे और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को वो नीचे रखते थे और अपनी बातों को हाईएस्ट करने की कोशिश करते थे। पौलुस ने कहा कि बस मैं सबसे पहले ये तुम्हें नसीहत करता हूं कि मैंने जाते हैं और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। अगर आज हम सब यहाँ मौजूद हैं तो जरूरी है कि हम ये सब बातें जो खुदा ने हमें दी हैं हम एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करें, एक दूसरे के लिए खुदावंद का शुक्र करें कि खुदा ने मेरे भाई बहन बेटे बेटियां दी हैं, खुदा ने हमें औलाद दी है, खुदा ने हमें खूबसूरत घर दिया है, खुदा ने हमें ब्लेस किया है। किसके जरिए? खुदा के पाक रूह के जरिए। अगर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर ना आए तो फिर हम कभी भी बाबरकत नहीं हो सकते। सो बाबरकत होने के लिए जरूरी है कि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर हर वक्त हर लम्हा हिलना चाहिए। जैसे कि उस हौज की तरफ आप देखें कि जब 38 वर्ष का बीमार शख्स उस हौज की तरफ आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से वहां जाऊं, लेकिन लिखा है कि बहुत मुद्दत से कोशिश करते 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 नहीं पहुंच सका। आज उस हौज की तरह हमें क्या करना है? हिलना है, मूव करना है। और मूविंग जो है खुदा चाहता है। मूविंग तब आती है जब हम यूनाइट होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। और अगर एक जगह किसी भी जगह पे पानी ठहर जाए तो वहां से बदबू आती है कि नहीं आती? खुदा नहीं चाहता कि हमारे घरानों के अंदर बदबू आए, कलीसियाओं के अंदर बदबू आए, और उन घरों के अंदर जहां खुदा की शुक्रगुजारी नहीं आई वहां बदबू आ जाती है, क्योंकि वहां पानी हिलता नहीं है। पानी हिलने से मुराद कि खुदा की प्रेजेंस वहां आती थी, खुदा का फरिश्ता आता था, उस पानी को यूं हिलाता था, मूविंग होता था वो पानी। आज घरों के अंदर मूविंग क्यों नहीं होती? क्योंकि हम खामोश बैठे रहते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते, इल्तिजाएं नहीं करते, हमारा जाते नहीं करते, और हमारा वो जो ठहराव है वो एक जगह जमा हो जाता है, जिसके जरिए से ब्लेसिंग जो है हमसे दूर हो जाती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि क्या करो? शुक्रगुजारियां करो और दुआएं करो और कमाल दीनदारी के साथ संजीदगी से अमन आराम के साथ जिंदगी गुजारें। यानी शेखीबाजी, अपने आप को बड़ा बनाना, बड़े बड़े बोल बोलना, बहुत सारी ऐसे काम जो खुदा ने बहुत सारी जगहों पे मना किया है, हमें नहीं करने की जरूरत। हलीमी के साथ, आजी के साथ, फरोती के साथ हम खुदा के कभी फरोतन हाथ के नीचे रहेंगे तो हम क्या होंगे? सर बुलंद होंगे। खुदा सर बुलंदी चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बरकत और लाना चाहता है। बरकत सिर्फ ये नहीं है कि हम वक्ती तौर पे अपनी मर्जी के लिए हम कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ रख लें। बहुत दफा मौका मिलता है कि लोग बैठे बैठे शुक्रगुजारी की दुआ रख लेते हैं, ठीक है, मकसद कोई नहीं है, सिर्फ जी सानू बरकत मिल जाए। कलीसियाओं के अंदर लोग बरकत पाने के लिए, शिफा पाने के लिए चर्चेस भरे हुए हैं, लेकिन वो शिफा पा लेते हैं, निजात नहीं पाते, क्योंकि वो ईमान यीशु मसीह पर नहीं लाते। अपनी शिफा के लिए, अपनी जरूरत के लिए वो वक्ती तौर पे तो खुदा के पास आ जाते हैं कि हमें शिफा मिल जाए, हमारा कैंसर चला जाए, बीमारी चली जाए, लेकिन वो निजात को नहीं पाते। और खुदा का खातम काफी साल पहले हमारे पास आया था लालकुर्ती में, विलियम कासे, उसने बड़ी खूबसूरत एक बात की। उसने कहा कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिस कलीसियां भरी हुई हैं, लोग वहां आते हैं शिफा लेने के लिए। कहता है लोग जब यीशु को लेने के लिए आएंगे, यीशु को पाएंगे तो बीमारी खुद चली जाएगी, क्योंकि यीशु उसके पास आ गया। वो तो शफा में ढूंढ रहे हैं, और जब शाफी अंदर आ गया तो शफा खुद मिल गई। ये बड़ी खास बात है और मैंने सीखी कि खुदा के पाक रूह ने बड़े अच्छे तरीके से खुदा के खादम के जरिए हमें ये सिखाया कि शाफी हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। शाफी अगर हमारे पास है तो फिर हम हर तरह से आजाद होकर, जिस तरह पौलुस ने कहा कि मैं नसीहत करता हूं कि हर वक्त हर लम्हा शुक्रगुजारी खुदा के सामने करना जरूरी है। सो खुदावंद हमें बरकत दे, हमें खुदा अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करे। हम सब खड़े होते हैं खुदावंद की हुजूरी में, इसी तरह हम अपने आप को महसूस करेंगे कि खुदा की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। मेरे साथ मिलकर एक जरूर कोर्स गाए और अपनी आंखें बंद रखें और अपनी दरख्वास्तें, अपनी मनाजातें खुदावंद के हुजूर लाएं और सब दुआ करें। साथ अगर गा सकते हैं तो गाएं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरी रूह से भरते
करते हैं। यीशु तू मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू मुनज्जी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। हम तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। तू मौत पे फातेह हैं तू जीवन दाता है, तू मौत पे फातेह है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं तेरी पाक हज़ूरी से तेरी प्रस्तुति करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठा के हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन कहते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह को सजाते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तुति करते हैं। जिंदा आसमानी बाप प्यारे खुदावंद यीशु के नाम में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं आज की इस वक्त के लिए, इन घड़ियों में जो मालिक खुदावंद तूने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सके, हम यूनाइट हो सके। खुदावंद तेरे कलाम के लिए, तेरी आवाज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खास तौर पर सिस्टर मोना के लिए, अपने भाई जेवियर के लिए, बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि मालिक खुदा की जिंदगी में तूने मुमकिन किया कि सारा जलाल खुदा तेरे बेटे यीशु को दे सके। हाजिर जमात को बरकत दे, जितनों ने खुदा तेरे कलाम को, तेरी आवाज को सुना है, उन सबको बड़ी बरकत दे। बाकी मदद मेरा हिफाजत कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। जी एक और गीत गाना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, उसके बाद प्रार्थना करें। कोई और प्रोग्राम तो नहीं है जी? आखिरी दुआ किसी की कोई दरख्वास्त है, दुआया दरख्वास्त, तो वो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। किसी की भी कोई दुआया दरख्वास्त है तो प्लीज बताइए। ये मुझे नहीं बतानी, ये खुदा सुनेगा। भाई इसके लिए दुआ करेंगे। आप बताएं, कोई भी आपकी जरूरत है, खुदा आपकी ख्यालों को जानता है, आपकी डिजायर को जानता है। प्लीज बोलिए, नहीं तो फिर भाई के साथ हम आखिरी दुआ के साथ दुआ रबानी और कमाते बरकत लेंगे। जॉब्स के लिए, हमारे घर में जॉब्स। आपका नाम है सर, के लिए दुआ करें। उसके बाद सब आंखें बंद करें जी खुदा की हुजूरी में। हालेलुया बाप तेरा शुक्र करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जॉब को हुक्म देता हूँ तेरे नाम और बेरोजगारी को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूँ। और गुर्बत सलीब पर कुचली गई है। ए गुर्बत तेरा इनकार कर देते हैं, ए बेरोजगारी तेरा इनकार कर देते हैं।
जॉब को हुक्म दे देता हूँ और जो चीजें नहीं उन्हें इस तरह बुला लेता हूँ गोया के वो है। हम ईमान लाते हैं तूने जॉब अच्छी दे दी है और अमला भी अच्छा है और इंतजाम भी अच्छा है। बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बेटे के वसीला से और ईमान लाता हूँ और यकीन करता हूँ जो मिल गई है। हमने दुआ में जो कुछ मांगा वो हमें मिल गया और इस घराने में इत्मीनान आ गया और फैमिली में इत्मीनान आ गया और तूने घर इन्हें दिया। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तूने मौत को खत्म कर दिया और फतेह अभी की जिंदगी ये बसर कर रहा है। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी हमदो सुना के लिए आज के जिंदा कलाम के लिए जो हमारी तरबियत के लिए हुआ। बाप तेरा शुक्र करता हूँ बाप इन रूहानी लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और बाप सारी खराक के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी बाप दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे बेटे का लहू देखता हूँ और सलीब की कुदरत को देखता हूँ। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र हो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में और यीशु की सिखलाई हुई दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहिए आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। और आखिरी कलमात खुदा के बंदा के साथ मिलकर अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल पाकरू की रफाकत शराकत बरकत हाजिर जमात पर आलम कलीसिया पर बनी इसराइली कौम यरूशलेम और जितने भी मसीह यीशु के खून पीते हैं यीशु मसीह की आमद सानी तक यीशु मसीह की बरकत सब पर ठहरी रहे। सब कलीसिया बोले आमीन आमीन।